Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. Guys, as we all are aware that many airlines are hiring cabin crew and most of the candidates have the same question in their mind, how to crack the cabin crew interview. Because it's a very common question which comes in everyone's minds that what all are the tips and tricks to crack the cabin crew interview, how to crack the cabin crew interview, kaise crack kare. So you don't need to worry because you are at the right channel. In today's video, I'm going to share each and everything with you, like what all are the important questions which you need to prepare and what all are the things which you need to keep in your mind when you are going for your interview. So if you are new to my channel, make sure that you subscribe, hit the bell icon, and here's my Instagram handle. Please go and follow me there for more support. And please keep on watching this video because it's a kind of important video for you if you really want to crack the cabin crew interview. Because in today's video, I'm going to share some basic thing and some questions which you need to prepare before going for an interview. So without any further delay, let's just get started with the video. Guys, for cracking an interview, you need to focus two things very carefully. The first thing is that a common question which an interviewer asks to their candidates. There's always a common question, not only one common question, there are many common questions which an interviewer asks to every candidate who comes for an interview. Second thing which you need to focus on is on yourself. So first we'll talk about the question which airline asks to every candidate, and then after this we are going to talk about the things which you need to focus on yourself. So let's start. Guys, so there are some questions which airline asks to every candidate. So now I'm gonna tell you the questions. So these questions are very easy to answer. These questions are very easy to understand. It's not something which you are not aware of. It's something which is about yourself only. So the first question is, tell me about yourself, or an introduction we can say. जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन ही पूछता है एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हमने सुनी है ना वो कहावत, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो इसका भी वही मतलब है. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. ओके गाइज, सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चनिंग का. सो इसमें आई एम ओनली गोना शेयर द क्वेश्चन. आंसर आपको खुद बनाना है. बिकॉज वाई आई डोंट वॉन्ट टू शेयर द आंसर, बिकॉज अगर मैं एक आंसर शेयर करूंगी उसको देखने वाले बहुत लोग हैं एंड जब आप इंटरव्यू ले जाओगे तो सेम आंसर को बहुत लोग बोलेंगे, जो कि काइंड ऑफ वियर्ड लगता है. एंड आई नो कि मैं अगर जितना भी बोलूँ कि गाइज आप सेम आंसर मत देना, सेम आंसर मत देना, बाद में सेम आंसर ही जाता है. बिकॉज आप लोगों के मन में आएगा कौन सा मैं वहाँ देखने आ रही हूँ, बट आपको ये नहीं पता इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत घट जाते हैं क्योंकि आप किसी और का आंसर कॉपी करके वहाँ पे बताते हो. सो इसलिए मैं आंसर शेयर नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको थोड़े से आइडियाज दूंगी कि कैसे आप अपना आंसर फ्रेम करते हो. बट पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज योर टेल मी समथिंग अबाउट योर इंटरेस्ट. सो आप उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है आप वो बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई यू आर गुड फिट फॉर दिस जॉब, विच मीन्स कि आप क्यों इस जॉब के लिए एक गुड फिट हो या फिर क्यों हमें आपको सेलेक्ट करना चाहिए इस पोजीशन के लिए, और वी कैन से क्यों आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो. एंड देन आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जब जाते हो तो एक और कॉमन क्वेश्चन ऐड हो जाता है, दैट इज योर व्हाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ही पूछा जाता है. सो गाइज, इसी तरह आपको कॉमन क्वेश्चंस फाइंड करने हैं कि इंटरव्यूअर ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस है जो सभी से पूछते हैं. गाइज, इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन इज समथिंग अबाउट योर सेल्फ. इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में बोलना पड़ता है एंड यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपका आंसर जो है वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ना हो जाए. कई लोग सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन हम 5-6 मिनट का बोलेंगे तो हमारा गुड इंप्रेशन होगा, बट बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आंसर होता है आपका, तो वो काइंड ऑफ बोरिंग हो जाता है. बिकॉज इंटरव्यूअर को सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं लेना, उनको बाकियों का भी इंटरव्यू लेना होता है. सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड कि व्हेन यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन, जस्ट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. और आप 1 मिनट तक का इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं. सो इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बोलें, आपकी एज बोलें, आप कहाँ से हैं, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्यों रही है, एंड आप क्यों इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं. आप इतना बोलेंगे, दैट्स फाइन. यू डोंट नीड टू ऐड अबाउट योर फैमिली, अबाउट हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव इन योर फैमिली. नीड टू ऐड योर फादर्स और मदर्स प्रोफेशन. ये सारी चीज़ें आपको ऐड नहीं कर रहे हैं. व्हेन समवन इज आस्किंग अबाउट योर सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर फैमिली. सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर मेकिंग योर इंट्रोडक्शन.
नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट में हम हर किसी का जो इंटरेस्ट होता है इट्स डिफरेंट. किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है, किसी का इंटरेस्ट सिंगिंग में होता है, डांसिंग में होता है. सो आपका इंटरेस्ट जहाँ पे भी है, यू नीड टू शेयर दैट पार्ट ओनली. यू डोंट नीड टू मेक और यू डोंट नीड टू फेक इट कि मेरे को ये भी पसंद है, मुझे वो भी पसंद है. What if इंटरव्यूअर ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, at that time what will you gonna do? So make it short and simple, and whatever you are adding in your statement, just keep it true. Do not add any false information in it. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं ऐड करना भूल गई थी, अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज समथिंग जो कि आपको पता रहता है कि आपको क्या चीज़ करने से मोटिवेशन मिलती है तो आप और काम करते हैं, क्या चीज़ करने से आपको वीकनेस सा फील होता है कि आप किसी काम को अगर करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं. सो वो चीज़ आप उसके अकॉर्डिंग शेयर कर लेते हैं. नेक्स्ट, वाई यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू. सो कैबिन क्रू का बनने का हर किसी की लाइफ में एक डिफरेंट वो रहता है कि मैं किस रीज़न की वजह से कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ. यू नीड टू शेयर दैट पार्ट ओनली. जस्ट कीप इट रियल. डोंट ऐड कि मेरा बचपन का सपना है. सबका कुछ ना कुछ सपना होता है, बट एक रीज़न होता है कि क्यों आप बनना चाहते हो, क्या चीज़ आपको उधर अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ आपको शेयर करनी है. एंड इसके साथ ही आपको कंपनी के बारे में भी पढ़ना है, बिकॉज आप जिस भी एयरलाइन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, मेक श्योर कि आपको उसके बारे में भी पता हो. सो गाइज, इसी तरीके से आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस को माइंड में रखना होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हो, बट आप उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हो जो कि मे बी आपसे ना पूछा जाए, बट आप उन क्वेश्चन पे फोकस कभी नहीं करते हो जो कि बहुत ईजी होते हैं, आपके बारे में ही होते हैं. सो हमें हमेशा उन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए जिसको हम इग्नोर करते हैं. So guys, let's just talk about the things which we need to focus on ourselves. So it's your external appearance, your grooming, your body posture, the way of your face expression, your hand movements, your leg movements, your way of standing, sitting, and the way of your talking. So these all comes in the thing which you need to focus on. So guys, जो first tip है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फाइल है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो. बिकॉज जितने अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को प्रेजेंट करोगे वो आपके बारे में बताता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हो. मतलब कितना आपको हर चीज़ की नॉलेज है, कि आपको लगता है आप अपने चीज़ों के बारे में केयर करते हो. इट्स नॉट कि आप जस्ट जॉब देने आ गए ऐसे फाइल लेके, आपने चीज़ों को ईजिली प्रेजेंट कर रखा है so that it will be easy for the interviewer also to check your file. जब आप कोई मेसी फाइल इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करते हो, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द पर्सन टू फाइंड कि क्या लिखा है आपके फाइल में, क्या है आपके फाइल में. सो ऑलवेज प्रिपेयर योर फाइल इन अ वेरी गुड मैनर सो दैट उसको देख के इंटरव्यूअर को भी ईजी फील हो आपके बारे में जानने में कि आपका रिज्यूमे यहाँ पर है, आपने ये चीज़ें की हैं, आपका इंटरेस्ट इसमें है. सो वो इंटरेस्ट आता है. जब तक अगर आप कुछ चीज़ों को मेसी वे में प्रेजेंट करते हो तो उस चीज़ में कभी इंटरेस्ट नहीं आता है. एंड देन इंसान आपकी चीज़ों को भी नहीं देखता, देख के अनदेखा कर देता है, बिकॉज जिस वे में आपने फाइल को प्रेजेंट किया. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू फोकस व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू. Now the second thing and second tip is your external appearance, and इसमें आपकी grooming आती है, आपका hair आता है, आपके outfit आता है, आपका shoes आता है. So अभी आपको क्या करना है, for boys and for girls, आपका जो भी outfit है make sure that it's properly ironed, and आपका बॉयज़ के लिए उनका टोटली शेव होना चाहिए. जो आपके बाल हैं वो एकदम वेल एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन होने चाहिए. फॉर गर्ल्स ऑल्सो आपका जो भी हेयर स्टाइल है वो एकदम क्लीन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप मेसी हेयर्स के साथ वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो. फॉर बॉयज़ आपका फेस क्लीन होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि जैसे भी बस मुंह धो के चले गए. जस्ट एक क्लीन फेस में और एक मुंह धो के जाने में बहुत डिफरेंस होता है. फॉर गर्ल्स प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. शूज़ आपके क्लीन होने चाहिए. आपकी अगर गर्ल्स आप वो स्टॉकिंग्स आपकी फटी नहीं होनी चाहिए. बॉयज़ की सॉक्स नहीं फटी होनी चाहिए. प्रॉपर वॉच वगैरह सब कुछ होना चाहिए. आपके नील्स प्रेजेंटेबल लगने चाहिए. सो इन शॉर्ट आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए फ्रॉम हेड टू टो. Guys, it's not like that you need to look good for interviewer or for interview. You need to look good for yourself, because when you look good, when you feel good, you feel more confident, and उससे आपको और easy रहता है job crack करने में. बिकॉज आप नर्वस की जगह कॉन्फिडेंट फील करते हो.
सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड इससे रियली हेल्प होती है आपको इंटरव्यू क्रैक करने में. नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है, दैट्स योर थर्ड टिप, कि जब आप इंटरव्यू हॉल में एंटर करो, मेक श्योर यू वेयर अ गुड स्माइल, अ नेचुरल स्माइल ऑन योर फेस. एंड इट्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही स्माइल करना है बिकॉज दे हैड टू वेयर मेकअप. इट्स नॉट लाइक दिस. अगर कोई भी है, गर्ल है, बॉय है, आप इंटरव्यू हॉल में जैसे ही एंटर कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके फेस पे एक ब्यूटीफुल स्माइल हो. इट्स नॉट लाइक कि आप कितने भी थके हो, बट यू नीड टू वेयर अ गुड स्माइल एंड दैट टू लुक नेचुरल, नॉट अ फेक स्माइल कि आप फेक स्माइल कर रहे हो. एंड इवन जब आपसे इंटरव्यू कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ भी कोई भी आपसे बात कर रहा है, आपको अच्छे वे में उसको आंसर देना है विद अ स्माइल ऑन योर फेस. बिकॉज आप जब इंटरव्यू हॉल में जाते हो, आपको बहुत लोग नोटिस कर रहे हो, एंड जब आप अच्छे से प्रॉपरली हर चीज़ करते हो, दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर. सो मेक श्योर कि आप हर किसी से बात, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वहाँ पे सर्वेंट हो या फिर कैंडिडेट हो या फिर इंटरव्यूअर हो या कोई भी हो, you need to behave well, you need to wear a good smile when you are talking to them and अच्छे से आंसर देना. ये नहीं कि वहाँ पे आप गए हो, इवन आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, डोंट यूज़ एनी बैड वर्ड बिकॉज आपको वहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं. एंड मे बी हो सकता है क्या पता इंटरव्यूअर भी आपको नोटिस कर रहे हो. बिकॉज होता है कि हम लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तो कई लोग होते हैं जो आप लोगों को देखते हैं, एंड कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिनको मतलब हमारी आइज़ बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, एंड देन बार बार हम उन्हीं को देखते हैं. बट अगेन जब हमें कोई अट्रैक्टिव लगता है एंड देन वो पर्सन गंदे लैंग्वेज में बात करे या फिर रूड रहे, तो उसके बारे में चाहे वो कितना भी अच्छा लगे, देन हमारा एक माइंड बन जाता है दैट दिस पर्सन हैज़ एटीट्यूड प्रॉब्लम. सो यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड दैट यू नीड टू बिहेव वेल व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हो फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स, देन आपसे जब इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं, मेक श्योर, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने 7-8 इंटरव्यू बैठे, तो एट दैट टाइम मेक श्योर दैट आप जब आंसर कर रहे हो, सो आपको सिर्फ उसी इंटरव्यू के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करना है जिन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है, आपको सभी के साथ करना है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक को इम्प्रेस करना है बाकियों को इग्नोर करना है. सबके साथ आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है, आपको सभी से इंटरेक्ट करके आंसर करना है. एंड जब आप आंसर करो तो मेक श्योर दैट यू वेयर योर स्माइल एज वेल. And things which you need to avoid at that time: unnecessarily hand movements, nail biting, lips biting, tension, and like we do this, we look. and एक चीज़ आपको और अवॉइड करनी है, जब हम कई बार आंसर देते हैं तो वी लोग ऐसे ऊपर बार बार देखते हैं, जैसे लगता है ऊपर आंसर लिखा है, बट हमें वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर आंसर नहीं लिखा है. ये ऊपर देखने से ऐसा लगता है कि हम लर्न करके आए और हम भूल गए कि हमने क्या आंसर बनाया था. आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से खड़ा होना है. ये नहीं कि अगर आपके सामने सीट रखी है, आप इंटरव्यू हॉल में जा रहे हैं, आप तुरंत वहाँ जाके बैठ गए. वहाँ खड़े रहो, सबको ग्रीट करो. सबसे पहले ही जाते ग्रीट करो. जब तक वो लोग आपको बैठने के लिए ना बोले, आप नहीं बैठना. कई बार होता है कि सामने चेयर रखा रहता है, जब तक आपको कोई बैठने के लिए ना बोले, मेक श्योर कि आप ना बैठे, बिकॉज it shows respect towards the interviewer and also a good gesture towards them. सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो कई बार हम लोग माइंड में नहीं रखते हैं, बट ये सब चीज़ें करने से ना कि आपके अंदर कितने मैनर्स हैं, ये सारी चीज़ें शो करती हैं. गाइस, सो जब आप आंसर कर रहे होते हो, कई बार होता है कि हम नॉर्मल भी बातचीत करने लगते हैं. सो उस टाइम पे आप लोग भी इंटरेक्ट करो. जब आप इंटरव्यू हॉल में जाओ, उनको ग्रीट करो, पूछो दैट हाउ आर दे. लाइक अभी वैसे भी कोविड सिचुएशन गया है, तो यू नीड टू आस्क देम कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि वो लोग कितने लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं. सो ये भी एक बहुत ही, मतलब आप जितने अच्छे से उनके साथ बिहेव करोगे ना, उतना ही आप उनकी नज़रों में आओगे, एंड मे बी आपके चांसेस भी इंक्रीज हो जाए, बिकॉज आपके आंसर पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर दे रहे हो. ये नहीं होता कि आप अच्छे से बिहेव करते जा रहे हो, बट अगर आपका इंग्लिश एकदम निल है एंड आपका आंसर एकदम 0 है, देन वो उसका मतलब ये नहीं है कि अब मैंने तो अच्छे से बिहेव किया बट मेरे को तो सेलेक्ट नहीं किया. आपका आंसर भी 100% होना चाहिए जैसा आपका बिहेवियर है उनके तरफ. एंड गाइस, जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो, आप उनको ग्रीट करके एंड जो भी करके, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, और इट वॉज अ नाइस इंटरव्यू, इट वॉज नाइस सीइंग यू, या फिर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वेटिंग फॉर अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, आई बी वेटिंग, एंड जो भी करके आप एक अच्छा सा लास्ट में
अपना एक गुड इंप्रेशन बना के वहाँ से बाय टेक केयर करके आप जा सकते हैं। एंड मेक श्योर ये नहीं कि आपको बोला है एंड आप नॉर्मल चलेगा, या कुछ भी बोल के आप जा सकते हो, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, बाय एंड टेक केयर करके भी आप वहाँ से जा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें करने से ना एक्चुअली क्या रहता है, क्योंकि ये एक कस्टमर सर्विस फील्ड है, यहाँ पे आपको कस्टमर्स के साथ भी ऐसे ही बिहेव करना पड़ता है। दैट्स वाई आपको इंटरव्यू के सामने ये चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि बाय चांस अगर वो आपको सेलेक्ट करते हैं, फ्यूचर में जाके आप फ्लाइट में ऐसे ही पैसेंजर्स के साथ भी बिहेव करोगे जैसे आज आप उनके साथ कर रहे हो। एंड मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें करो ना, ये ना लगे कि आप फेक कर रहे हो। कई बार होता है कि हम लोग थोड़ी देर करने के लिए सब चीज़ें कर देते हैं। मेक श्योर वो चीज़ नेचुरल लगे, ये नहीं कि आप मतलब बस अब भी इंटरव्यू के लिए ही बस इतना कर रहे हो, उसके बाद ये चीज़ें नहीं कर रहे हो। एंड आपको जो भी वहाँ पे मिले सबके साथ आपको यही करना है। चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है वो है आपका अननेसेसरी हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, चिल्ला चिल्ला के बात करना, यूजिंग बैड वर्ड्स, अवॉइड यूजिंग बैड वर्ड्स। किसी से भी बात कर रहे हो रूड नहीं होना, अच्छे से बात करना है। डोंट शो एटीट्यूड टू एनीवन अनटिल एंड अनलेस वो सामने वाला पर्सन आपके साथ वैसे ही रहे। बट आप ट्राई करो कि ऐसे लोगों से को ना ही इंटरेक्ट करो, ना ही उनको एंटरटेन करो, बिकॉज कई बार हम जाते तो हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं। सो उन लोगों को इतना एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपना अच्छे से रहो, मेक श्योर कि टाइम टाइम पे आप अपना टचअप भी करते रहो जो आपकी ग्रूमिंग है, बिकॉज वो इतने टाइम तक नहीं रहती है। मेक श्योर आप जाओ, देखो आपके बाल तो ठीक है, आपके टीथ पे तो कुछ नहीं लगा है ना, सब कुछ ठीक है ना, आपके बॉडी से अच्छी स्मेल तो आ रही है ना, ये तो नहीं है बॉडी ऑर्डर हो रहा है। मेक श्योर कि परफ्यूम आप अपने साथ कैरी करो। तो ये कुछ बेसिक थिंग है जो हमें इंटरव्यू के टाइम पे बहुत ध्यान रखनी चाहिए, जो हम इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान नहीं रखते हैं। सो गाइस, यही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं लाइव आती हूँ कि दी आप कुछ टिप्स बताओ कैसे इंटरव्यू क्रैक किया। So it's something which is a kind of time consuming answer. So I thought of making video on this, and इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है बट इतना डिटेल में मैंने नहीं बनाई थी। So I hope कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगेगी, एंड इससे आपकी कुछ हेल्प हो सकती है, आपको कुछ ना कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप कहीं पे भी लैक कर रहे हो। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, प्लीज़ वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर देना। सो अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ पर मैं वीडियो बना सकती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। एंड अभी मैं बहुत लोगों का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ a lot of works and a lot of things going around me. So just give me some time, I will for sure reply. And yeah, that's all for today. Now I'll see you guys in my next video. Till then, bye and take care. Bye bye, and best of luck for your interviews.